It's my privilege to introduce the Honorable Minister. Dharmendra Pradhan ji is known for personally driving PEHAL, the world's largest direct benefit transfer scheme based on LPG cylinders, and the Give It Up campaign. That was an absolutely amazing thing which was done, actually. This was aimed at encouraging affluent citizens to surrender their LPG subsidy for those actually in need. And I think in many ways that was a starting point of many of these revolutions of shift to providing the needs of the needy. A man of great commitment to his belief in India's leadership in knowledge and learning, he is driving a substantial expansion and upgrade of India's education system. And interestingly, he's done it in many places. I'll talk a little bit about that maybe. Under his leadership, the new education policy is transforming India's education system. एक सुझाव आपके लिए. Like we did for GST, we got all the finance ministers of the country or all the states together to implement GST as an empowered group. I would recommend you should try and do the same for the education because it's such a fantastic policy that has been developed. The implementation, because it will be done by states, is obviously going to be patchy, it will be different. The one way to actually get consistent implementation across the country could be an empowered group of education ministers working along with you. So if you want to try something like that, it could be a new way to implement something which is otherwise state subject. The change leader, he has introduced new approaches and regulations in each ministry that he has headed. He is spearheading reforms in education content and medium and appointment of education administrators. In the Ministry of Skills Development and Entrepreneurship, where he launched several new initiatives for skilling, reskilling, and also upskilling. During his tenure as the Minister of Petroleum and Natural Gas earlier, he had transformed the cooking gas distribution and introduced a new hydrocarbon exploration and licensing policy. During his stint as the Minister of Steel, he catalyzed a major expansion and upgrade of the domestic steel making, and we see some of the beneficiaries sitting here, which enabled India to meet the increased demand of steel in a rapidly growing economy and truly build a world-class capacity right now. He is truly a key leader of India's transformation. It's my pleasure to invite the Minister of Education, Mr. Dharmendra Pradhan, to address the audience. Dharmendra Pradhan ji. नमस्कार मित्रों, मैं आज के कार्यक्रम में थोड़ा लेट आया. मैं आप सभी का क्षमा प्रार्थी हूँ. मैं मंच की मर्यादा को और समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए किसी की नाम नहीं लेने का धृष्टता करता हूँ. आदरणीय महानुभव जिनको आज आइमा की ओर से मैनेजिंग इंडिया अवार्ड में नवाजा गया, सम्मानित किया गया, मैं सबसे पहले इन सभी महानुभवों को शुभेच्छा देता हूं, धन्यवाद देता हूं, देश की ओर से आभार प्रकट करता हूं. आप सभी के निजी और सामूहिक उपलब्धि के लिए देश आज गौरवान्वित हुई है, देश की मर्यादा बढ़ी है, देश की अर्थनीति में प्रगति आई है. मैं इसके लिए इस चयन समिति की प्रमुख आदरणीय संजीव गोयनका जी को धन्यवाद देता हूं. मैं एज ए पब्लिक पॉलिसी प्रैक्टिशनर दूर से लगभग सभी महानुभवों का उपलब्धि को थोड़ा बहुत समझने का प्रयास किया है, थोड़ा बहुत अभ्यास भी किया है. मैं आइमा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इस परंपरा को बरकरार रखने के लिए. और इस बार शायद पहली बार कहा गया, देश की आइकॉनिक पर्सनैलिटी स्वर्गीय रतन टाटा जी के नाम पे पहली बार शायद उनके नाम पे ये सम्मान दिया गया. और मेरे लिए व्यक्तिगत रूप में बहुत ही प्रसन्नता की विषय है. देश के ऐसे एक टेक्नो फिलैंथ्रोपिक ऐसे उनका वर्णन किया गया, आदरणीय नंदन नीलेकनी जी को इसकी सम्मान में सम्मानित किया गया. बाकी सभी महानुभावों को फिर एक बार मैं आभार प्रकट करता हूं, शुभेच्छा देता हूं. समय बहुत हो गया है,
मैं 2-3 शब्द थोड़ा लाइटर मूड में कहता हूं। अभी जितिन जी कह रहे थे कि उन्होंने नीलेकनी जी उनके पास आते थे, गैस की डाटा मांगते थे, एलपीजी नंबर, थोड़ा कुछ करने के लिए। मैं थोड़ा जितिन जी की अनुमति लेके कहा, जितिन जी मैं थोड़ा आपका प्रशंसा करूंगा, आप अगर डाटा देते हम यहां नहीं होते, या आप हमारे पास नहीं आते। Mr. Nilekani, if you would have been given the data, LPG data to you, I wouldn't have been fortunate to implement the largest ever DBT program envisioned by Prime Minister Modi. हम नहीं करते और हमारी उज्ज्वला इतना सक्सेस नहीं होता। इसलिए यही सबसे बड़ा मैनेजमेंट है। आइडिएट कहीं से भी हो, आइडिएट कहीं से भी हो, उसको लोक कल्याण में एथिकली इंप्लीमेंट करना सबसे बड़ा दायित्व बनता है, सबसे बड़ा चुनौती बनता है। और आप लोगों ने बेस्ट प्रैक्टिसेस को इकट्ठा करके आपकी प्रोफेशन में, आपकी कामों में उसको आपने इंप्लीमेंट किया, इसीलिए आज ये उपलब्धि हुई है। मैं 1-2 विषय, आप जब ट्रेड एंड कॉमर्स और रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर की दुनिया में मेरे को आपने बुला ही लिया, मैं थोड़ा मेरे 2-3 अपेक्षाएं आपको कहूं। मित्रों, इन दिनों में सब अपने पिछले 10 साल के बारे में कहे, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं यही समय ही सही समय, दिस इज द राइट मोमेंट फॉर इंडिया, दिस इज इंडियाज मोमेंट। मैं इन दिनों में मेरा एक अनुभव आपसे शेयर करना चाहता हूं। 1 तारीख को आदरणीय वित्त मंत्री 7th टाइम कंज्यूकेटिवली उन्होंने अपना बजट टेबल किया। बजट में कई विषय कहा है, इस बार शायद नाभिका जी को कम अवसर मिला हमको आलोचना करने के लिए, फिर भी की होगी, करना भी चाहिए। लेकिन इस बार 1 लाख करोड़ से ज्यादा एक प्रकार से टैक्स रिबेट सिटीजन्स को मिला है। सीधा सीधा उसकी इकोनॉमी में, सर्कुलर इकोनॉमी में इंपैक्ट उसके आएगा, ट्रिकल डाउन होगा, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, एक मल्टीप्लायर, फोर्स मल्टीप्लायर की इंपैक्ट आएगा। उस समय में और एक विषय उल्लेख किया गया, मैं उसको मैं पहली बार 2004 में पार्लियामेंट आया। 4 से 9 के अंदर एक बहुत चर्चित विषय था भारत में, सिविल न्यूक्लियर डील 1, 2, 3। निक्सॉन के बारे में खूब चर्चा होती थी, निकबॉन के बारे में खूब चर्चा होती थी। वो सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी स्टेट थे। उन दिनों में हमें भी कभी उनको मिलने का अवसर मिला। रणेन सेन जी की फेमस वो चिकन वाला स्टोरी खूब चला था उन दिनों में। उस समय की भारत में 2 कारण से सिविल न्यूक्लियर डील पे आपत्ति थी। एक सही कंसर्न था कि देश के एनवायरमेंट की क्या होगी, क्या हमारे भोपाल दोबारा हो जाएगा, इस प्रकार के जेन्युइन कंसर्न थी। दूसरा, हमारे देश में जो एंटी अमेरिकन अप्रोच रहता है, वो भी एक कारण था। मैं उन मित्रों के नाम लेना नहीं चाहूंगा, ये सब आप भी भली भांति जानते हैं, आप भी थोड़ा बहुत उनसे कभी कभी पीड़ित भी रहते हैं आपकी फैक्ट्री के सामने। उस 2 कारण से देश में एक कंफ्यूजन था। कोई पब्लिक लीडर न्यूक्लियर ट्रीटी के बारे में बहुत जोर से कहने के लिए हिम्मत नहीं करते थे। इस बार बजट में फाइनेंस मिनिस्टर मैडम ने यह अनाउंस किया, हम भारत में मॉड्यूलर न्यूक्लियर प्लांट लगाएंगे। हमारी एनर्जी डिपेंडेंसी के लिए हमारी सोर्स, प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम विल बी नॉट डिपेंडिंग ऑन सिंगल सोर्स, और सोर्स विल बी मल्टीपल। और मैं इसीलिए उस घटना को उल्लेख किया। अभी पिछले सप्ताह डेविड मुलफोर्ड, उस 4 से 9 में जो भारत में अमेरिका के राजदूत थे, who was a key instrument for that negotiation, he was here in India. प्रधानमंत्री जी जस्ट उसी दिन अमेरिका के दौरे से लौटे थे, मेरे को उनसे मिलने की अवसर मिला। कई विषय गपशप हुई। जब मैंने उनको कहा इस बार फाइनेंस मिनिस्टर मैडम ने यह विषय उल्लेख किया है, मैं उनकी आंखों की चमक दिख रहा था, उनके मन की संतुष्टि दिख रहा था। आप सभी के अमेरिका के साथ और वेस्टर्न वॉल के साथ एक एक अनुभव होगा, कभी सुखद अनुभव हुआ होगा, कभी विचित्र अनुभव हुआ होगा।
लेकिन मित्रों, मैं आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं, आज भारत ऐसे एक क्षण में पहुंचा है जब नंदन नीलेकनी जर्मन जाते हैं, वो जर्मनी भी कहते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड दुनिया के एक रोबस्ट इकोनॉमी है, वो भी कहते हैं हमें भारत से क्या मिलना है। ये भारत की मोमेंट आ चुका है मित्रों, ये आपकी बदौलत हुई है। जो सम्मान आज आईमा में आपको दिया है, ये कोई इंडिविजुअल अचीवमेंट नहीं है, आप सभी ने, आपकी टीम को आपने डेडिकेट किया। मैं आप सभी की ओर से इस उपलब्धि को देश को समर्पित करता हूं। 130 करोड़ लोगों की उपलब्धि है, हम सब मिलके उसको और ऊंचाई तक ले जाएंगे। मेरे एक अपेक्षा है, आई एम इंचार्ज ऑफ नॉलेज सेक्टर ऑफ आवर कंट्री। देयर इज नो सेकेंड ओपिनियन इन द वर्ल्ड looking up into our achievement of last 10 years. आज हम भारत दुनिया की डिजिटल ट्रांजैक्शन की नियर 50% भारत में ही होता है। ये भारत की टेक्नोलॉजी की कैपेसिटी है, इनोवेशन की कैपेसिटी है, एंटरप्रेन्योरियल कैपेसिटी ही है। आप में बहुत लोगों को विरासत में संपन्नता मिली होगी। इस हॉल में ऐसे अनेक महानुभव हैं जिनको मां सरस्वती के कारण उनके पास लक्ष्मी आई है। इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी के कारण, नॉलेज के कारण, इसी की नाम है नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। आज भारत दुनिया में सर्विस इंडस्ट्री की बेताज बादशाह बना हुआ है। कोई H1 B1 कुछ नहीं लगने वाला है। भारत की मेडिसिन नहीं जाएगा, दिलीप भाई मेडिसिन नहीं भेजेंगे, दुनिया के आधे लोग दिलीप भाई के पास लौट के आएंगे और भेजेंगे। दिलीप भाई छोड़ेंगे थोड़ी, भेजेंगे ही। जिनल भी भेजेगा, मिलके भेजना ही हमको। हमें कोरोना में दिखाया हमने। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी को कुवैत में उनकी देश की सबसे सिविल अवार्ड मिला। जब कुवैत की कोरोना की जस्ट खत्म हो रहा था, कुवैत की राजा वहां से कि देहांत हुआ, जो नया राजा बने, मैं भारत की ओर से कॉन्डोलेंस लेटर लेके गया। मैं उस क्षण को भूल नहीं सकता हूं मित्रों। कुवैत माननीय प्रधानमंत्री और समूचे भारत के प्रति इतना कृतज्ञ था कि आपने हमें कोरोना के समय में मेडिसिन दिया, डॉक्टर्स दिया, नर्सेस भेजा, इक्विपमेंट्स भेजा। हमारे पास कितना भी संपन्नता रहे, हमको दुनिया के हमारे बड़े बड़े पुराने मित्र जब हाथ छोड़ दिए, भारत हमारे साथ रहा। ऐसे 100 से ज्यादा देश को भारत की सप्लाई चेन जारी रहा। ये किसने किया? आप लोगों ने किया। मैं एक एक इंडस्ट्री, इसलिए मैंने कहा मैं थोड़ा बहुत आपके बारे में जानता हूं, थोड़ा स्टडी करता हूं। मैं एक एक सेक्टर में उल्लेख कर सकता हूं। भारत इसीलिए कहा सर्विस सेक्टर में बेताज बादशाह है। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स के कई मित्रों को सम्मानित किया। एप्पल फोन जो दुनिया की कम्युनिकेशन की इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है, आज उसकी 12% भारत में ही बनना शुरू हुआ है पिछले 3 साल के अंदर। इसमें कोई संदेह नहीं। मेरे मित्र जितिन जी ने भी कह रहे थे, हमें कोई संदेह नहीं, आने वाले दिनों में भारत की जो स्किल पूल है, नॉलेज पूल है, उसके कारण हम दुनिया की फैक्ट्री बनने वाले हैं। भारत की 60% पॉपुलेशन बिलो 35 ईयर से। ये दुनिया में किसी देश के पास ये एडवांटेज नहीं है। ये आने वाले 25 साल अमृतकाल, ये बहुत ही अपॉर्चुनिटी का देश रहेगा। लेकिन मित्रों, मैं अंत में इतना ही अपेक्षा आपसे करूंगा, 1-2 चीजों में हमारा अभी भी काम बाकी है। वो हमारे हाथ में आने वाला डीप टेक्नोलॉजी। औद्योगिक क्रांति 1 में हमें समझ में नहीं आया वो क्या हुआ, 2 में हम मजदूर बने, 3 में हम सुपरवाइजर बने, 4थे में हमको अभी अपॉर्चुनिटी आया है मालिक बनने का। हमें डीप टेक्नोलॉजी में इंडियन इंडस्ट्रीज को, विशेष करके नई पीढ़ी की उद्यमियों को ये अपील करता हूं देश की ओर से, हमारी देश में मेधा की, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी की कोई कमी नहीं है। इस हॉल में इसका अनेक उदाहरण हमने हमारे सामने। किसी भी क्षेत्र में चुनौती है हमारी एक इकोसिस्टम बनाना, इंडस्ट्री, एकेडमी एंड पॉलिसी मेकर। इन तीनों की
एक कॉन्सेंसस व्यू, सब स्वीकार करते हैं हम अपना देश में टेक्नोलॉजी बनाना ही पड़ेगा। मैं अनेक टेक्नोलॉजी को दुनिया में घूम के देखता हूं, यूनिवर्सिटियों में देखता हूं, मेरे को बड़ा विचित्र लगता है कि असहज महसूस होता है जब विश्व की सारे बड़े यूनिवर्सिटी की रिसर्चर भारत की विद्यार्थियों को देखता हूं। भारत सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई है, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है। भारत सरकार ने कई प्रकार की इंसेंटिव की व्यवस्था की है, 1 लाख करोड़ रुपया की लॉन्ग टर्म R&D लोन की व्यवस्था की है। एक प्रकार से आपके पास ग्रांट ही है और प्रधानमंत्री जी ने कहा सरकार तय नहीं करेगा कहां रिसर्च होगा, उद्योग तय करेगा कहां रिसर्च होगा। मित्रों, इसकी समझ आपको सबसे ज्यादा है। देश की लोगों की मार्केट को ही जानकारी है, कम्युनिटी में, सोसाइटी में रिक्वायरमेंट क्या है। आज गवर्नमेंट आपके लिए फैसिलिटेटर की भूमिका में है। हमने इनकम टैक्स रेगुलेशंस को नए सिरे से ले आने का हिम्मत मेरे सरकार ने आपके सामने रखा है। मित्रों, रिफॉर्म आपके परामर्श से हम बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कर रहे हैं, लेकिन मेरा अंत में फिर एक बार अपील रहेगा, विंग इंचार्ज ऑफ नॉलेज वर्टिकल ऑफ माय गवर्नमेंट, आपको डीप टेक में, आपकी आवश्यकता में, आपको ही समझ है, उसी में आपको इंडियन इंस्टीट्यूशंस के साथ, मैं अभी नीलकनी जी बेंगलुरु में आए, इसे मैं एक रात में बेंगलुरु जाता तो वहीं रहता हूं। मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं हूं। मैं उनको एक दिन पूछा कि रंगाराजन जी, मेरे को समझाओ, पिछले 25 साल में IISc हमारा साइटेशन में, रिसर्च में दुनिया की 1 नंबर इंस्टीट्यूशन है, लेकिन आपके पास प्रोडक्ट क्या निकला है? आप प्रोडक्ट की लाइसेंस आप सब ढूंढते हो जाके बाहर। आप इंडियन यूनिवर्सिटी पे इन्वेस्ट करने का फिलांथ्रोपी थोड़ा कर देते हो। फिलांथ्रोपी नहीं चाहिए, पार्टनरशिप चाहिए आपसे। मैं इंडियन इंडस्ट्री को अपील करता हूं, इंडियन यूनिवर्सिटी को, इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, आपकी रिक्वायरमेंट में आप असेसमेंट करिए। कम से कम देश में सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशन और स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशन में 250 क्वालिटी इंस्टीट्यूशन, आप सब उसी में पढ़ के आए हो, आप सब उसी में पढ़ के आए हो। उस इंस्टीट्यूट पे भरोसा करिए। उस इंस्टीट्यूट में आज आपके पास ताकत है R&D में खर्चा करने के लिए। आपकी रिक्वायरमेंट बताएं और देश के नौजवानों पे भरोसा करिए। एक नई हाइट्स में हमें जाना है। डेस्टिन हमको अपॉर्चुनिटी दे रहा है। आइए हम सब इस बार की आईमा की प्रोग्राम में, कम से कम आने वाले दिनों में मैं आईमा को ये अपेक्षा रखूंगा, कम से कम एक वर्टिकल तो संजीव जी और मुंजाल साहब उसको जोड़िए। कम से कम जो इनोवेशन को, देश की रिक्वायरमेंट है इनोवेशन को जो आगे बढ़ाएगा, न्यू आउट ऑफ बॉक्स सोच के एक नया प्रोडक्ट भारत में लाएगा, जो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट ग्लोबल रहेगा। आज इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर ग्लोबल रिक्वायरमेंट है। ऐसे ही हमें कुछ टेक्नोलॉजी इनोवेशन करना पड़ेगा, प्रोडक्टाइज करना पड़ेगा, जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी में ही डेल्टा है। या आपकी जो थ्योरी है ना, से 15 आप लोग सब कंटेंट हो, 17% इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी इज ग्रेट। टेक्नोलॉजी में मैंने हिसाब किताब मेरे जितना बुद्धि लगाया 30-35% से कम नहीं है। भारत को आप ही के नेतृत्व में 30-40% रिटर्न ऑन इक्विटी की आवश्यकता है। इट्स ओनली कैन बी पॉसिबल थ्रू टेक्नोलॉजी इनोवेशन। प्लीज डू दैट। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी।